I just want to thank God for what I heard. जो परमेश्वर ने सुना है इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। We heard that God has planned for me and each one of us, हमने सुना कि परमेश्वर ने एक योजना बनाया हमारे लिए, हम सब के लिए, and He has a perfect time, और उसका एक सिद्ध समय है, and how His invisible hand worked in people's life in the Bible. कैसा उसका अदृश्य हाथ लोगों का जीवन में काम करता है बाइबल के अंदर। We heard in Jonah's life and Ruth's life, हमने योना का जीवन और रूत का जीवन में सुना, Elias's life. एलियाजर का जीवन में सुना, Same God we are worshipping and called us. और वही परमेश्वर है जिसका हम आराधना करते हैं, जिन्होंने हमें बुलाया है। We all can in our life, we can taste and experience, and we would have seen in our life how His hand worked in us. हमने हमारा जीवन भर हमने देखा है और चख के देखा है कि कैसा उसका हाथ हमारा जीवन में काम करता है। I just thank God for His mercies. और ये संदेश के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I just want to share something what God put in my heart, challenged me and encouraged me. मेरा जीवन में परमेश्वर ने जो बात किया है और मुझे चुनौती दिया है उसको मैं बांटना चाहता हूँ। That's from 1 Peter chapter 4, पहला पत्रुस उसका 4 अध्याय verse 10 and 11. 10 और 11। It says, as each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Whoever speaks, let him speak as it were the utterances of God. Whoever serves, let him do so by the strength which God supplies, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen. जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरों की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा सामर्थ युगानुयुग उसी की है। आमीन। Here also we hear that God has given each one has some gift. यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग अनुग्रह का वरदान दिया है। When we think about physical gift, जब हम somebody gives gift to us, एक तोहफे के बारे में जो हम लोग को कोई देता है उसके बारे में सोचते हैं, we may use it for ourselves or we may keep it to show to others. ये हम लोग खुद के लिए रखेंगे या तो दूसरे को ऐसे दिखाने के लिए हम रख सकते हैं। Here the word of the one in God's kingdom, लेकिन परमेश्वर का राज्य में whatever gift we received from God, जो भी वरदान हम परमेश्वर से पाते हैं, not for myself, वो हम खुद के लिए नहीं है, to serve one another in the वो body of Christ, वो एक दूसरे का सेवा करने के लिए परमेश्वर का शरीर में, to bring God's glory. परमेश्वर का महिमा लाने के लिए। Here we talks about the speaking gift of speaking. यहाँ पे जो वचन ने तो वचन बांटने का वरदान के बारे में, Our gift of serving, नहीं तो सेवा करने का वरदान। whether we speak or serve, या हम वचन बांटते हैं या हम सेवा करते हैं, we have to do it by the grace and by the ability, but the faith, according to the faith what God has given to us. जो भी विश्वास या जो भी अनुग्रह परमेश्वर देता है उसके योग्यता के अनुसार हम करना है। I was thinking about serving. मैं सेवा के बारे में सोच रहा था। There was time that I want to do the things ministry for God. ऐसा समय था जो मैं परमेश्वर का सेवा करना चाहता था। I want to do a lot of things. मैं बहुत सारा सेवकाई करना चाहता था। But God, after coming here, God taught me लेकिन इधर आने के बाद परमेश्वर ने मुझे सिखाया, what I am doing for God is not important. जो मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है। What God does in me and what God does through me, जो परमेश्वर मेरे अंदर करता है और मेरे द्वारा करवाता है वो महत्वपूर्ण है। that gave me tremendous rest in my heart. वो मेरे जीवन में बहुत एक विश्राम लाया। That's why I try to do anything, everything. That's why I stopped doing anything, everything. उसी समय मैंने रोक दिया कि सब कुछ मैं ही करना चाहिए, ऐसा एक मनोभाव जो मेरे अंदर था। Always waiting what God will tell me, or God's anointing or authority tells me. और मैं हमेशा रुका रहता हूँ कि परमेश्वर क्या कहता है, या परमेश्वर का जो अभिषेक या परमेश्वर का जो अधिकार के नीचे जो है वो क्या मुझे बताता है। That's where I learned to wait upon Him. उससे मैं सीखा कि परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर के लिए हमें रुकना है।
So when I try to do with my own strength, my own wisdom, जब मैं मेरा ज्ञान के अनुसार या मेरा सामर्थ के अनुसार करने के लिए देखता हूँ, there are times I may fail, I get tired and get discouraged. उस समय मैं असफल होता हूँ, नहीं तो मैं निराश होता हूँ या मैं पीछे हट जाता हूँ। When God gives something, लेकिन परमेश्वर अगर कुछ देता है, He gives His strength and wisdom and ability. वो हम उसका सामर्थ और उसका ज्ञान और उसका जो करने का जो शक्ति है वो भी देता है। Even we know that Matthew chapter 25, the man gives talents to the slave. हमें मालूम है कि मत्ती 25 में वो जो मालिक है अपना दासों को एक एक तालन देता है। One received 1 talent, one received 2, one received 5. एक को 1 तालन मिलता है, एक को 2 और एक को 5 मिलता है। At the end, we see that the master commended according to what they received and what they could do. और पर हम जानते हैं कि आखिर में जो मालिक था, जिन्होंने उनके तालन के अनुसार दिया, उसके अनुसार किया है, उनको उसने तारीफ किया है। God will not expect you to do anything beyond my ability and beyond the ability which He gives to me. परमेश्वर कभी भी ऐसा अपेक्षा नहीं करता है कि मेरा जो तालंत है या मेरे को जो वरदान दिया उसके बढ़कर या उससे ज़्यादा मैं करूँ। That's what I'll learn to pray. God, please give me grace and strength, wisdom, anything you want me to do. Otherwise, I can't do. इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ देना, जो भी तू मुझसे करना चाहता है वो करने के लिए। Even speaking a word also, यहाँ तक कि यहाँ पे आके एक वचन बांटने के लिए भी, even asked to share the testimony or share witness. या गवाही बांटने के लिए किसी के सामने गवाही होने के लिए एक मौका मिलता है। I really need grace from God. उस सब के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मुझे जरूरत है। It says that when He's speaking, speak as oracles of God. इधर लिखा है कि जब हम बात करते हैं परमेश्वर के जो मुंह के नहीं तो परमेश्वर से पाया हुआ वो वचन के अनुसार बात करो। I cannot speak the oracles of God with my own wisdom or own understanding. मेरा खुद के दिमाग से अगर मैं बात करूंगा जो परमेश्वर का वचन के ओर से मिलता है वो बात नहीं कर पाऊंगा। That's why word of God encourages. इसलिए परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है। We all know that Colossians chapter 3 verse 16. कोलोसी उसका 3 का 16 हम लोग पढ़ते हैं। That the word of Christ richly dwells in you. परमेश्वर का जो यीशु मसीह का जो वचन है हमारे दिलों में एकदम बहुतायत से बसने पाए। When word of God richly dwells in me, जब यीशु का वचन हमारे अंदर बहुतायत से भर जाता है, then only be able to encourage, admonish anybody in the body of Christ. तो ही हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए, एक दूसरे को वचन से समझाने के लिए हमसे होगा। To word of God to richly to be with me, what I go to do. अगर वचन बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बस रहना चाहिए, उसके लिए मैं क्या करना चाहिए? The word of God comments like that. वचन ऐसा बताता है In 2 Timothy 2:15. दूसरा तिमोथी 2:15। I got to be diligent in studying and reading word of God. परमेश्वर का वचन पढ़ने में और उसको ध्यान करने में मुझे एकदम उत्साही होना है। So that I will not be put to shame and I will be careful how to use correctly the word of God at the time of need of the people. ताकि मैं शर्मिंदा नहीं हो जाऊं और सही समय में वो वचन को सही रीति से बांटने के लिए, उपयोग करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता करे। And also Romans chapter 15 verse 14 encourages like this. और रोमियो उसका 15 का 14 ऐसा बताता है, We ought to be filled with the goodness of God. हम परमेश्वर का जो भलाई से भरना चाहिए, We ought to be filled with the knowledge of God. और परमेश्वर का ज्ञान से भरना चाहिए। Then we'll be able to encourage and admonish or teach others. तो ही हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए, एक दूसरे को सिखाने के लिए और एक दूसरे को बढ़ाने के लिए हमसे होगा। Along with this, one challenge also comes. इसके साथ और एक चुनौती हमारे जीवन में आता है। In 1 Timothy 4:16 it talks about. पहला तिमोथी 2 का 16 ऐसा बताता है। So that is a warning and a challenge to me. ये मेरे जीवन में First Timothy 4:16. पहला तिमोथी 4 का 16। Pay close attention to your life and the doctrine. हमारा जीवन और हमारा जो शिक्षा है उसके उधर हमें बहुत ध्यान लगाना है। So that you can ensure the salvation to your own soul, also to the one who hearing you. और तो हम हमारे खुद का जीवन में और हमारे सुनने वालों का जीवन में उद्धार ला सकते हैं। So this word gives the fear of God.
और ये वचन मेरे जीवन में परमेश्वर का डर भय लाता है। That's why I ask God, if anything I want to share, please give me grace, give me word, and work in me first. और इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर अगर कुछ मुझे करना है तो पहला मुझे अनुग्रह देना, मेरा जीवन में पहला काम करना, फिर मैं दूसरे को अनुग्रह दे What सकता I हूँ। am going to share, it has to work in my life first. जो मैं बांटना चाहता हूँ वो पहला मेरे जीवन में काम होना चाहिए। In New Covenant, we have a privilege. In New Covenant life, we have privilege. New Covenant life, we have ये privilege. नया वाचा में हमारा एक सौभाग्य है And also the promise. और एक वायदा है। God knows our ability and limit. परमेश्वर हमारा जो सीमा है वो जानता है। So according to Hebrews chapter 8:10, it talks about इब्रानी 8:10 में ऐसा लिखा है, He will write His laws in my heart, in my mind. वो उसका वचन जो है हमारा दिलों में और हमारा मन में लिखेगा। When He writes the laws in His mind and my heart, और जब वो हमारा उनका जो व्यवस्था है हमारा मन में और हमारा दिल में लिखेगा, I may not able to forget. तो मैं कभी भूलूंगा नहीं। Even if I forget, अगर मैं भूल भी जाऊंगा, the anointing, the one is with me. और जो अभिषेक देने वाला मेरे साथ है, The God has given the Holy Spirit to remain time to time, और पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने उंडेला है ताकि वो समय समय पर मुझे याद दिलाए, so that it can bless first me and also to bless others. ताकि वो पहला मुझे आशीष दे और फिर और लोगों को आशीष दे। So that's why I want to thank God for His for such a word. और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इसका वचन के लिए। Whether sharing His word or serving in His kingdom, परमेश्वर का वचन बांटने में या उसका राज्य में सेवा करने में, I want to seek His grace and strength and wisdom from Him. और उसका अनुग्रह और उसका ज्ञान और उसका सामर्थ्य में खोजना चाहता हूँ। So thank God, I praise. परमेश्वर का धन्यवाद। Thank God for what I heard today. परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद। It's last 2-3 weeks, like a little confusion and discouragement. पिछले 2-3 हफ्ते से मेरा जीवन में बहुत सारा कंफ्यूजन और निराशा था। It's regarding to something happening in the office or something happening at home, like mommy not being well and all that. मेरा दफ्तर में जो होता है और मेरा घर में मम्मी बीमार है, उसके सबको लेके। But there's one question, like why are these things, coming into my mind, like all this. पर एक सवाल मेरा मन में था कि ये सब मेरा जीवन में क्यों हो रहा है। It's we say like I love God, I make मैं- statements, like that. मुझे मालूम, मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, I say I make statements, और मैं ऐसा बातें करता हूँ कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। But is that love inside the heart? It's not just, like I speak something, coming out. क्या But वो is it there inside? वो प्रेम जो है वो मेरा दिल के गहराई में है कि खाली मैं मुंह से बोलता हूँ। I was reading this 1 Corinthians chapter 13, like earlier. पहला कुरिन्दी 13 में पढ़ रहा था, And this again came to my heart, like if you read the first 3, the verses, उसका पहला 3 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, it speaks about, having the gift of tongues. उधर अन्य भाषा का वरदान के बारे में लिखा है, It's saying about, second is saying having the gift of prophecy. और उधर भविष्यवाणी का वरदान के बारे में लिखा है, Third it says having faith that can move mountains. और लिखा है कि हमारे पास ऐसा विश्वास है जो पहाड़ों को हटा सके, Fourth is saying giving all the possessions and feeding the poor. और फिर लिखा है कि हमारा सारा संपत्ति हम गरीबों में बांटे, And last it says I surrender my body to be burned for others. और मैं शरीरों को जलने के लिए अपने आप को सौंप दूं। But there's one thing, but if you do all these things and you do not have love, it's of no profit. और इधर लिखा है कि अगर ये सब चीज़ मैं करता हूँ लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। I can stand over here and I can really share, like what I heard today, but is that sharing coming out of love? और मैं बांट सकता हूँ कि मैं परमेश्वर से बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन वो जो मैं बांट रहा हूँ वो क्या प्रेम से उत्पन्न होके आता है क्या? If I meet a brother and say, hello brother, how God bless you, God bless, but is that when I speak those words, is there that love in my heart? मैं एक भाई से मिलके बहुत बोल सकता हूँ, परमेश्वर का आपको आशीष दे, ऐसा सब बोल सकता हूँ, लेकिन वो जो बातचीत है वो क्या प्रेम से उत्पन्न होके आता है क्या? There's one verse when the disciple asked Jesus,
which is the greatest verse of all. He says, first you love your God with all your heart, all your soul and all your mind. और एक व्यक्ति आके यीशु से पूछता है कि सबसे बड़ा आज्ञा क्या है, तो यीशु मसीह बोलता है सबसे बड़ा आज्ञा तो ये है कि तुम तुम्हारा पूरा शक्ति से, पूरा मन से और पूरा आत्मा से परमेश्वर को प्रेम करें। This is heart. What is there in my heart? There should be love of God in my heart. हमारा पूरा हृदय से यानी हमारा दिल के अंदर क्या है वो पूरा परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। Body is nothing, but the soul is there inside. The soul should also crave for love. हमारा शरीर तो कुछ नहीं है, लेकिन अंदर एक प्राण है, वो प्राण पूरा प्राण से परमेश्वर को प्रेम करना And चाहिए। what goes in my mind, what I'm thinking, it should be the love of God. और हमारा सोच मन में क्या जाता है वो सब परमेश्वर के प्रेम के बारे में, वो पूरा सोच से परमेश्वर का प्रेम करना है। I came to a place where I can say, God, I'm a really big liar. मैंने ऐसा बोला कि परमेश्वर मैं एक बड़ा झूठा हूँ। I see myself, no, I see that real life love is not there in my heart. मैं जब देखता हूँ को सच्चा प्रेम जो होना चाहिए वो मेरा जीवन में नहीं है। You know, if you read that stuff further of the chapter, it gives that, what is love, Love will never complain, love will not get angry, it will not brag, it won't be selfish. There are many things, that when you have love, these things will be there in the heart. Not, there will be no confusion, there will be no discouragement. आगे हम वो अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है, कभी गुस्सा नहीं आता है, वो क्षमा करता है, आनंदित होता है, कभी निराश नहीं होता है। वैसा वाला प्रेम है। अगर सच्चा प्रेम है तो कभी निराश नहीं होता है। I was thinking about that, I was thinking about Saul, when he lost his kingdom, when he lost his anointing, not kingdom, he lost his anointing from God. It was not that he had lost that love for God, that he didn't obey. He had that thing, people should know that God has, taken away my anointing. जब सॉल के जीवन में जब उसका अभिषेक हो गया तो उसको ये चिंता नहीं था कि मैंने परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं किया तो परमेश्वर का अभिषेक मेरे से चला गया। ये उसके बारे में कुछ चिंता नहीं, उसको यही सोच था कि लोग उसके बारे में नहीं जानना चाहिए। It was the love of what people will say, and that love for that kingdom, what I have, was more than the love of God. क्योंकि उसका लोगों का जो राय है उसके प्रति जो प्रेम है, और दूसरे बात उसका वो जो राजा बनने का स्थान के प्रति जो प्रेम है वो ज़्यादा था, इससे ज़्यादा कि वो परमेश्वर को प्रेम करें। So do I have that love? Is my love for God stronger, or the love which for other, other things, that is more stronger? If I might have, God won't take away my things that I have, but that anointing of God, that won't be there. That love of God won't be there. हमारा जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम ज़्यादा है कि जो बाकी जो चीज़ें हैं उसके प्रति प्रेम ज़्यादा है। परमेश्वर शायद वो सब देगा हमें, लेकिन परमेश्वर का जो अभिषेक हमारा जीवन में होना चाहिए वो नहीं रहेगा। We read a verse this: first you seek the kingdom of God and His righteousness, and all the other things will be added unto you. हम वचन में पढ़ते हैं कि पहला उसका राज्य और उसका धर्म का खोज करो, फिर इन सारे बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ देगा। This verse came to me you first seek the love of God, and then loving others will automatically come to you. ये वचन मेरा मन में ऐसा आ रहा था कि पहला तुम परमेश्वर को प्रेम करने के लिए खोजो, फिर लोगों को प्रेम करने के लिए बाकी लोग सब अपने आप हो जाएगा। This father who went to Jesus with his son who was he had this evil spirit in him. एक पिता था अपना बेटे को लेके यीशु मसीह के पास आया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था। And the disciples tried to remove the spirit, but they couldn't. And the father went to Jesus. पहला वो शिष्य के पास गए और वो चेले लोग यीशु मसीह के जो थे वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, तो फिर वो यीशु मसीह के पास आए। And Jesus asked him do you believe that this can happen? यीशु मसीह ने वो पिता से एक सवाल किया कि क्या तुम विश्वास करते हो कि ये मैं कर पाऊंगा? But he says or the teacher says, I believe, but you help my unbelief. तो यीशु मसीह से कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ लेकिन तू मेरा अविश्वास का सहायता कर। Can really pray today, God, I believe that love you can come to me, but please remove that unbelief. हम भी ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मैं तेरे पास आ सकता हूँ, लेकिन मेरा अविश्वास को हटा दे। God will. परमेश्वर सहायता करेगा।
I thank God for the encouraging word. ये प्रोत्साहन का वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। Today we hear that we have to yield our life to Jesus Christ. हमने सुना है कि हमारा जीवन हम यीशु मसीह के प्रति समर्पण करना चाहिए। So we should not think, we should not yield our life before it become late. हम हमारा जीवन को बहुत देर होने से पहले ही हमें सौंपना चाहिए। So that is what the most of the people they want to give to Jesus Christ, but it is too late. बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं लेकिन वो बहुत देर हो जाता है। So we know that some people, when Jesus was there in the earth, they have done so many things. It is totally given to the Jesus Christ. हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे कोई लोग हैं जो यीशु मसीह के प्रति कुछ किया, वो सब कुछ यीशु मसीह के लिए किया। We know that the Joseph Arimathea, he given the linen cloth to the Jesus Christ and covered his body and put it in the grave. और जो अरमित्या का यूसुफ है, उन्होंने यीशु मसीह का जो शरीर को ढांपने के लिए एक कपड़ा दिया था, तो वो यीशु मसीह के लिए वैसा उसने एक सेवा किया। So now the body of Christ is the church. अभी यीशु मसीह का जो शरीर जो है हमारा कलीसिया है। So and one more time, the Lazarus sister Mary, he poured out the essence and anointed the Jesus Christ. और लाजरस की बहन जो मरियम थी, उन्होंने यीशु मसीह का पैरों सर पे वो जो कीमती तेल डाल के यीशु मसीह को अभिषेक किया था। But some women when Jesus died and they took so many essence and everything they prepared, but they come to the grave, but Jesus was not there. यीशु मसीह का पुनरुद्धान के बाद यीशु मसीह का जो कब्र में जो स्त्रियां सुबह उठ के गई थी यीशु मसीह का शरीर को, उन्होंने सोचा कि एकदम अच्छा सुगंध से हम करेंगे, पर तभी वो शरीर उधर नहीं था। So some time ago I heard one story. कुछ समय पहले मैंने कुछ कहानी सुना। The man of God went to the actress. एक परमेश्वर का जो दास था, एक जो मूवी में एक्ट्रेस है, उनके पास गए। He given the gospel and you have to accept the Lord and you yield your life to Jesus Christ. उन्होंने वो जो अभिनेत्री से कहा कि वो अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहिए। No, but she told, no, I have to accomplish so many things. I cannot give my life to Jesus Christ now. वो बोला कि उन्होंने बोला कि मेरा जीवन में बहुत कुछ चीज़ है जो मुझे पाना है, इसलिए मैं अभी यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण नहीं कर सकती हूँ। So then he finished his conversation. तो उसने अपना बातचीत ख़त्म किया। That time she given 1 cup of tea. तो उन्होंने उनको एक कप का चाय दिया। He drink a little bit. उन्होंने थोड़ा वो चाय पिया। Then he given to the lady, drink this tea. तो उन्होंने बोला कि ये बाकी का चाय आप पी लो। She pushed the glasses. तो उन्होंने वो स्त्री ने वो कप को फेंक दिया उधर। How you can be you can ask me to drink the tea which you drink. तो उन्होंने पूछा कि तुम जो चाय पिया उसका बाकी मैं पीने के लिए आप कैसे कह सकते हो? So that man of God said, the same way the Lord Jesus Christ also will push like this. तो वो परमेश्वर का दास ने बोला कि वैसे ही यीशु मसीह भी आपका जीवन को ऐसा इनकार करेगा। If you are not yield your life now. क्योंकि आप अपना जीवन का जो बाकी है वो खाली देना चाहते हैं, आप अपना जीवन अभी समर्पण करो। So that is what. So this is the time we have to yield our life to Jesus Christ. It should not become late. इसलिए हमारा जीवन को समर्पण करने का समय अभी है, वो बहुत देर नहीं करना चाहिए। So we also heard that there are so many 3 people that receive the talents. हमने ये भी सुना कि 3 लोग जो है अपना उनको तालंत दिया था। So the one man received the 1 talent, but he is not make one more talent. So God, the man given the severe punishment to him. हम जानते हैं कि उसमें से एक व्यक्ति को 1 तालंत मिला था, उन्होंने वो तालंत का व्यापार नहीं किया, उन्होंने वैसे ही रखा, तो उनको बहुत बड़ा दंड मिला। So that is what God given 1 talent to everyone.
that is the prayer. और परमेश्वर ने हम सबको कम से कम एक तालंत भी दिया है. If I am not use that talent, so I will also be in very bad situation. अगर मैं वो तालंत को उपयोग नहीं करता हूँ तो मैं भी वो बुरा अवस्था में पहुँच जाएगा. So even the other people also receive some talent. He might not earned through the other 4 talent or other 1 talent, the who's received 2 and 4, 5. दूसरे लोग को भी तालंत मिला था, उन्होंने 2 और 4 मिला था, 2 और 5 मिला था, तो उन्होंने वो उस तालंत का व्यापार किया था. But that is what I trust, that I believe that who received the 5 talent, which he used the 1 talent to become a 10 talent. तो जिसको 5 मिला था उन्होंने हर एक तालंत का उपयोग किया ताकि वो 10 बन जाए. Means he used other 4 talent. He might not gained anything. Those who received a 5 talent, हाँ, yeah. Those who received the 5 talent, you consider that this is my imagination. The 4 talent he used and spent, all are lost. ऐसा हो सकता है कि शायद उसको जो 5 तालंत मिला था उसमें से 4 उसने ऐसे गवा दिया और कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ. But using 1 talent, that is the prayer, and he used powerfully, and he gained another 9 talents. और उन्होंने जो 1 तालंत का उपयोग करके शायद प्रार्थना का उपयोग करके उन्होंने वो 9 तालंत उसको मिल गया. Maybe the man he is not punished for those he lost 4 talent. उनका जो 4 तालंत उन्होंने गवा दिया उनके लिए उसको दंड नहीं मिला. Even that is what God speaking means, that I have to pray for our church, I have to pray for our fellow believers, I have to seek for them welfare. इसलिए परमेश्वर ऐसा मुझसे बात कर रहा था कि मुझे प्रार्थना करना है मेरा कलीसिया के लिए और मेरा जो हमारा साथ जो विश्वासी है सबके लिए प्रार्थना करना है. That is what in Abraham also he heard about the bad things about is going to happen for Lot. वैसे ही अब्राहम ने लूत के बारे में सुना कि बुरा बात उनका जीवन में घटने वाला है. So in our life also we hear about some people, they are in bad condition. What our reaction? इसलिए हमारा जीवन में भी ऐसा हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति का बहुत बुरा अवस्था है तो हमारा जो प्रतिक्रिया क्या होता है. The Abraham interceded and he prayed to the angels, don't destroy that. अब्राहम ने प्रार्थना किया और परमेश्वर के सामने कहा कि उनका नाश मत करना. But he is not a gossiping, and he went to some people who, so I given so many advice to Lot, but he is not obeyed. So now he is in bad situation. He is not went around and gossiping to anyone. लेकिन वो लूत का ऐसा जाके दूसरे लोग को बदनाम नहीं कर रहा है कि मैंने कितना उसको समझाया ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सुनता नहीं है. अभी वो ऐसा बुरा परिस्थिति में पहुंच गया, ऐसा सब नहीं बात कर रहा है. So that is what God spoke to me, that if you are hearing something about the bad others or in our church, I should not gossip, but I have to pray for them. I have to regain them. वैसा परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि अगर कलीसिया में किसी के बारे में मुझे मालूम पड़ता है तो मुझे बदनाम नहीं करना है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना So करना I है. have to yield my life before it became late. और मेरा जीवन बहुत देर होने से पहला ही मुझे समर्पण करना है. Amen. आमीन. We thank God. प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम. We thank God for the word of God He has spoken to us. और प्रभु ने जो वचन से बात की उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. And when God speaks something, it is always good to listen to Him. और जब परमेश्वर हमसे बात करता है ये अच्छी बात है कि हम उसको सुने. There is a specific thing which God must have spoken this morning. और कोई विशेष ऐसी बात होगी जो परमेश्वर उसके द्वारा हमसे आज बात कर रहा होगा. Related to something which is happening in our life. और जो बातें हमारे जीवन में हो रही है उसके बारे में शायद वो होगा. That is the reason we come together as a church to hear from God. और इसीलिए कलीसिया के रूप में हम इस प्रकार आते हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए. So this morning what God has spoken will just
take a moment to respond to what God has spoken. और आज सुबह जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमसे बात किया है, हमें कुछ क्षण ले जो उस वचन को सुना है उसको हम प्रतिक्रिया दें। In Hebrews, there is a word which says that the word which they heard did not profit them because it was not mixed with faith. और इब्रानियों के अंदर एक वचन है कि जो वचन उन्होंने सुना वो उनके लिए कोई लाभ नहीं किया, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा नहीं था, It was not mixed with faith. विश्वास के द्वारा वो जुड़ा हुआ नहीं था। So today when God speaks that I have a plan for my life, God has a plan for my life, और यदि परमेश्वर आज हमसे ये बात करता है कि प्रभु मेरे जीवन के बारे में एक योजना को रखता है, and everything God is going to make work for my, everything works together for my good, और हर बातें मिलकर मेरे जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करती है, and God has a specific time for everything and every specific incident which occurred, और मेरे जीवन के बारे में हर एक घटना, हर एक हालात जो हो रही है उसके लिए एक निर्धारित समय ठहराया गया we है, should take it personally and we should thank God for everything. और हमें उसको व्यक्तिगत रूप से लेना है और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। And if I am a man of faith and I want to mix it with faith, और यदि मैं एक विश्वास का जन हूँ, उसको साथ विश्वास से उसको जोड़ता हूँ, I will thank God for the delays which I really wanted something and it delayed. I will thank God for that. और जो बातें मेरे जीवन में होनी चाहिए थी उसमें देरी हो रही है, फिर भी मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद तब I will दूंगा। thank God for the disappointments, the discouragements, the things which I cannot understand. और जो बातें निराशा में मेरे जीवन के अंदर है, जो बातें मेरे नियंत्रण से बाहर, जिसे मैं नहीं समझ सकता, उसके लिए मैं धन्यवाद तब दूंगा। Yeah, so let us take this time to just give ourselves to God and respond to what God has spoken. और इस समय को हम इस्तेमाल करें, जो बातें हमने हम परमेश्वर को अपने आप को देने के लिए और उसके वचन को हम प्रतिक्रिया दें। We'll just pray. हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, प्रभु तेरे वचन के लिए जो सच में प्रभु हमारे जीवन के अंदर एक ज्योति लेकर आता है, हमारे अंधकार के उस स्थानों के अंदर प्रभु हमें प्रज्वलित करता है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे लिए जो आशा तूने रखा है, सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं। प्रभु इस वचनों को जानकर कई बार हम इन परिस्थितियों में इस वचनों के सत्य को भूल जाते हैं। प्रभु उस निराशा, उस अंधकार में हम प्रभु टटोलते हैं, और प्रभु उन बातों के अंदर प्रभु हम आज मांगते हैं प्रभु कि इन सत्य को हमारे जीवन के अंदर और एक बार तो जागृत कर, एक नए प्रकाशन के रूप में हमारे जीवन में आशा के साथ इसे तू जोड़ दे, ताकि हम सुनने वाले नहीं पर इसको हम प्रतिदिन जी सके। यदि ये प्रभु हमारे जीवन में कोई निराशा है प्रभु, ऐसी कोई बातें जो हमारे जीवन में प्रभु हम नहीं समझ पा रहे, हमारे नियंत्रण से बाहर है, हम अपने जीवन को आज वहाँ पर तुझे सौंपना चाहते हैं। प्रभु तेरे समय पर, उस निर्धारित समय पर विश्वास करते हुए कि सब कुछ तू अपने समय में भला करेगा। प्रभु हम तुझे अपना सब कुछ सौंपना चाहते हैं, तेरी सिद्ध और भली भांति और प्रभु मन भावनी इच्छा जो है उसको सौंपना चाहते हैं। हम सबों की मदद कर कि इस वचन के आधार पर हमारे जीवन के अंदर हम जी सके। सबसे प्रथम हम तुझसे प्रेम करने वाले बन सके, जिसके लिए सब कुछ बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवनों में इस वचन का सौभाग्य तूने दिया प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं।